وبرکاتہ۔ حضرت علامہ مولانا مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں اور اب انشاءاللہ تعالی درس قرآن شریف شروع ہوگا۔ ہم تمام معزز خواتین و طالبات سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد مدینہ اپارٹمنٹ کے سیلر میں تشریف لا لیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت وکان امر اللہ مفعولا۔ صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے دھیرے دھیرے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے وہ لوگ جنہیں کتاب عطا کی گئی، ایمان لاؤ ان پر جو ہم نے نازل کیا، تمہارے ساتھ جو کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والی، اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کو پھیر دیں، پلٹ دیں، سامنے کو پیچھے کر دیں یا ہم لعنت کریں جیسے ہفتہ والے پر لعنت کیا۔ وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا معاملہ، اللہ کا حکم ہو کر رہے گا۔ یہ آیت نمبر 47 کا ترجمہ ہے۔ میں اس آیت سے قربانی کے حوالے سے ایک خاص اسپیشل ایپیسوڈ دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب یعنی یہودی اور نصرانی کو، صاحبان توریت اور صاحبان انجیل دونوں، ان کو یہ کہا کہ جس طرح تم پر میں نے جب توریت نازل کیا تو تم نے مانا اور انجیل نازل کیا تو تم نے مانا، ایسے ہی میں نے قرآن نازل کیا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اب تم پر لازم ہے کہ قرآن پر ایمان لاؤ، کیونکہ یہ قرآن تمہاری کتاب کی تصدیق کرتا ہے۔ اگر نہیں مانو گے تو تمہارا چہرہ پلٹ دیا جائے گا، منہ کو پیچھے کر دیا جائے گا، الٹ پلٹ کر دیا جائے گا، لعنت تم پر بھیجی جائے گی، اور یہ اللہ کا معاملہ ہے اور یہ اللہ کا معاملہ ہو کر رہے گا۔ اس سے ایک نقطہ یہ دینا چاہتا ہوں اس آیت کریمہ کے ذریعے کہ جو کوئی بھی اللہ کا حکم نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں یہ کہ اب ظاہر ہے جب چہرہ پلٹنے کی بات ہے تو یہ دنیا ہی میں ہے، اور آخرت میں بھی اس کو ذلت کی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی سلسلۃ الذہب کی ایک کڑی ہے قربانی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی منت اور لجاجت، بلکہ بڑی منت اور آرزو کے بعد حضرت اسماعیل عطا کیا۔ وہ اللہ کے خلیل تھے، محبت تھوڑی ڈیوائیڈ ہونے لگی، اللہ سے جو خالص محبت کا ایک عنوان تھا وہ حضرت اسماعیل کی طرف بھی مائل ہونے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کو آزمانے کی خاطر بیٹے کو ذبح، حضرت ابراہیم کو کہا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو۔ چنانچہ
अल्लाह का जो महबूब बंदा, ताबेदार बंदा होता है, चाहे वो नबी की शक्ल हो या वली की शक्ल हो, मिन वान अल्लाह के हुक्म के लिए अपने आप को झुका देना ही अब्दियत है। चुनांचे उन्होंने बेखौफ और बगैर सोचे समझे हजरत इस्माइल को ज़बह करने का फैसला किया और हजरत इस्माइल से पूछा भी। उन्होंने भी यही कहा, इफ़अल मा तुअमर, अब्बू जान जो भी आपको हुक्म हुआ वो आप कर गुजरिए। और आपको मालूम है कि जब वो छुरी चलाने का मामला आया तो अल्लाह ताला ने जन्नत से उनके बदले में मेंढा पेश किया और कहा, मुड़कर पीछे देखो, उसके बदले में तुम मेरी आजमाइश में खुरे उतरे हो, कामयाब हो गए। वफदईना हो बिज़िब्हिन अज़ीम, बड़ा मेंढा तुम्हारे पीछे मौजूद है उसके बदले में। सुबह क़यामत तक अब जो कोई भी कुर्बानी करेंगे, अल्लाह ताला हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनका सवाब और उनके सदक़े में ही कुर्बानी कबूल होगी। ये उनकी सुन्नत है और उन्हीं की सुन्नत है। मैं इस सिलसिले में बस इतना कहने जा रहा हूं कि कुर्बानी हर मर्द औरत पर ऐसे ही जैसे कि ज़कात का उन्वान है। ये बात बड़े अहम अंदाज में बोल रहा हूं, समझिए कि जिस तरह भी आपने रमज़ान में ज़कात के हवाले से बात सुनी कि मालिक निसाब 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या उतना कैश आपके पास अगर मौजूद है तो आप पर कुर्बानी वाजिब है। ये लफ्ज़ वाजिब पर गौर करें, नहीं करेंगे तो सख्त गुनाहगार होंगे, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि कुर्बानी में एक फैसिलिटी और एक अलग अलहदा हुक्म है। ज़कात के हवाले से यह है कि साल गुजरना उस पर ज़रूरी है, लेकिन कुर्बानी में ऐसा नहीं है, बल्कि कुर्बानी में अगर अय्याम कुर्बानी में भी आपको पैसे आ गए उतने तो आप पर कुर्बानी वाजिब है, इस पर साल गुजरना ज़रूरी नहीं है। मसलन अब कुर्बानी हफ्ता के रोज़ है तो हफ्ता के रोज़ समझिए पैसा नहीं आया, संडे के रोज़ आ गया, तब भी कुर्बानी आप पर वाजिब है। यानी इमीडिएटली भी आप मालिक बन गए। आज के हिसाब से कहूं तो 40,000 के 52.5 तोला चांदी, 40-45 हजार जो भी अगर आपके पास एक्स्ट्रा माल आ गया उस दिन, फिर नहीं आएगा बाद में, लेकिन अय्याम कुर्बानी में अगर आ गए तो आप पर कुर्बानी वाजिब है। ये एक थोड़ा फर्क है ज़कात में और कुर्बानी में। ज़कात के लिए माल पर साल गुजरना जरूरी है, शर्त है, लेकिन कुर्बानी में अय्याम कुर्बानी में भी के अंदर भी आपके पास आ गए माल तो आप पर कुर्बानी वाजिब है। एक बात। दूसरी बात यह कि कुर्बानी आप पर वाजिब है तो सबसे पहले आप ही देंगे कुर्बानी। ऐसा ना हो कि आप पर वाजिब है और आप अपने बाप की तरफ से देना शुरू कर दें या दादा की तरफ से देना शुरू कर दें। जिस पर कुर्बानी वाजिब है इसको आसान और कर दूं, जैसे आप पर नमाज फर्ज है तो ऐसा ना हो कि आप बेटी को कह दो बेटी हमारी तरफ से नमाज पढ़ लो, ऐसा नहीं है। इनफिरादी तौर पर हर एक पर कुर्बानी वाजिब है। इसी लफ्ज से मैं कई सवाल का जवाब ऑटोमेटिक दूंगा जो आप सब करने वाली हैं कि क्या पूरी फैमिली की तरफ से नहीं। ये इसी सवाल के जवाब में है। मैं ये बात कह रहा हूं कि ये मुस्तकिल, ये लफ्ज मुस्तकिल का मतलब ये कि वन साइडेड, मुनफरिद, अलहदा 10 जने अगर मालिक निसाब हैं घर में तो 10 कुर्बानी वाजिब है, चाहे वो हिस्से की शक्ल में हो या छोटे एक मुकम्मल बकरे की शक्ल में हो। जिन जिन पर कुर्बानी वाजिब है, जैसे जिन जिन पर ज़कात, अब अगर माँ के पास सोना चांदी है तो माँ पर भी ज़कात है, बाप के पास है तो बाप पर भी ज़कात है, बीवी के पास है तो बीवी पर भी, बहन के पास है, जो जो मालिक है ऐसे ही ज़कात का उन्वान जैसे था ऐसे ही कुर्बानी का भी उन्वान है। यहाँ पर कंफ्यूजन चलते चलते दूर कर दूं कि बहुत सारी क्लिप गर्दिश करती है कि पूरी फैमिली की तरफ से दे सकते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये मुस्तकिल इबादत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो पूरी उम्मत की तरफ से दी है वो आपको इख्तियार अल्लाह ताला ने दिया है। बहुत सारे अफाल ऐसे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आपके साथ खास हैं, पर्सनल हैं, ऑनली हैं, उन्हीं के लिए है। उसकी कई एक मिसालें हैं, जैसे उम्मत के लिए शादियों का मामला है 4 तक, वो भी शर्त और आदल के साथ। यानी अगर आपके पास कैपेसिटी नहीं है तो एक भी की, अगर कैपेसिटी नहीं है तो एक भी नहीं कर सकते। रोजा रखने का हुक्म है इस्लाम में, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 4 की शादी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये इख्तियार अलहदा था। 9-9, 10-10, 11-11 शादियां आपके लिए, ये आपके लिए खालिसतन लक मिन दुनिल मोमिनीन, ये हुजूर के लिए खास है, दूसरे मोमिनीन के लिए नहीं। जैसे अब मेराजुन नबी में जाना ये हुजूर के लिए खास है, बेसाया होना ये हुजूर के लिए खास है, कांधे पर अपनी नवासी को
نماز میں رکھنا یہ حضور کے لیے خاص ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت امامہ جو حضور کی نواسی ہیں، حضرت زینب کی بیٹی ہیں جو حضور کی دوسری بیٹی، ان کو آپ کاندھے پر لے کر نماز کی حالت میں، یعنی آپ کھڑے ہوتے نماز کی حالت میں تو کاندھے پر رکھ لیتے، رکوع میں جاتے تو اتار دیتے، پھر کھڑے ہوتے تو کاندھے پر رکھ لیتے. یہ نماز کی حالت میں اس طرح کرتے. اب آپ نانی ہو کر کے آپ ایسا نہ کرنا شروع کر دیں کہ حضور کی حدیث ہے. یہ حضور کے لیے خاص ہے، امت پر نہیں ہے. امت پر وہ عمل واجب ہے جو عمل حضور نے کیا اور اس کا آرڈر بھی فرمایا ہو. اس لفظ آرڈر پر غور کیجیے. اگر حضور کہہ دیتے کہ ہاں نواسی کو لے کر نماز پڑھو میری امتیوں، تو پھر جو نانا اور نانی ہو وہی نماز پڑھنا تھا، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں پڑھنا تھا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو آپ حجت اور دلیل نہ بنائیں، بلکہ حضور کے بہت سارے اعمال آپ کے لیے خاص ہے، پرسنل ہے، اور انہی کے لیے ہے. امت پر وہ عمل واجب ہے جو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بھی اور امت کو کہا بھی. یہ آرڈر کا جس کو کہتے ہیں کیا. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض ہے لیکن امت پر نفل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تو ضرور ہے لیکن امت کو کہا نہیں ہے کہ یہ تہجد پڑھنا ضروری ہے، لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے، نہیں کہا. اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور اعمال کچھ ایسے ہیں جو حضور کے لیے خاص ہیں. بہت سارے سوال کا جواب اس میں سے آپ کو مل گیا. تو قربانی کے حوالے سے جو دو اہم اور امپورٹنٹ بات تھی وہ میں نے بتا دیا کہ ہر ایک لوگ کرنا ہے. ایک بات اس سلسلے میں ہم بھارت میں انڈیا میں رہتے ہیں اور اجتماعی قربانی، مشترکہ قربانی بہت ساری جگہوں میں اس کا اہتمام ہوتا ہے. میں اس سلسلے میں شرعی ایڈوائزری یہ کروں گا کہ آپ جہاں کمانڈ ہو، جہاں یقین ہو، جہاں آپ کو پورا اطمینان ہو، اعتماد ہو، بھروسہ ہو، محبت نہ ہو، دھیان دیجئے گا، آپ ہماری محبت میں آپ ہمیں پیسہ دے دیں اور آپ کی قربانی ہی نہ ہو تو یہ محبت تو ادا ہو گئی لیکن واجب ادا نہ ہوئی. اس لیے قربانی کے ایام میں محبت ادا نہ کریں، عقیدت ادا نہ کریں. قربانی جو عبادت ہے وہ کریں. آپ قربانی جو واجب ہے آپ کے اوپر وہ کریں. آپ سے پوچھ گچھ ہوگی، آپ سے سوال ہوگا. جو اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے اس پیسے کے حوالے سے کہا تھا کہ اس کا یہ مصرف ہے، اس مصرف کو صحیح طور پر نہیں خرچ کیے تو آپ کی گرفت ہوگی، آپ کی پکڑ ہوگی. محبت میں، عقیدت میں کمی بیشی ممکن ہے، وہ بھی مخلوق کے حوالے سے، لیکن عبادت میں کمی بیشی ہو تو گرفت ہو جائے گی. اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جہاں کہیں بھی اجتماعی قربانی کا مسئلہ ہو، مشترکہ قربانی کا مسئلہ ہو، حصے لینے کا مسئلہ ہو، وہاں آپ کو کمانڈ ہو، بھروسہ ہو، مخلصین ہو، آپ کی قربانی بالکل ہو سکتی ہے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جہاں کہیں بھی حصے کا معاملہ ہو، یا آپ اپنے خاندان ہی میں دیکھیں، ایک بڑا جانور لے آئے، آپ 7 جنے ہیں الحمدللہ، آپ 7 جنے کی جو نیت ہونی چاہیے وہ اخلاص اور للہیت ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کی نیت ہونی چاہیے. سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں اللہ پاک فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ. لوگوں، قربانی کے جانور جو ہوتے ہیں نا، جو تم کرتے ہو، اس کا گوشت یا اس کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا، تمہارے جانب سے جو نیت، تقوی، اخلاص، للہیت ہے وہ پہنچتا ہے. یعنی تم جس نیت سے کر رہی ہو وہ پہنچتا ہے. اگر آپ نے اس نیت سے کیا کہ واو 22 کلو 20 کلو گوشت ملنے والا ہے تو پھر وہی پہنچے گا آپ کو، پھر آپ کو ثواب نہیں ملے گا. 365 دن تک بھی آپ ماشاءاللہ گوشت کھاتے ہیں. اور میں تو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ قربانی کے ایام سے کہیں زیادہ آپ ولیمہ میں گوشت کھاتے ہیں، 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ، ہے نا؟ ہاں، یا شادی بیاہ میں کھاتے، جبکہ وہ سنت ہے اور قربانی واجب ہے. تو قربانی کو خالص تقوی، للہیت، عبادت، اس مقصد سے آپ کیجئے. گوشت لینے، ذخیرہ اندوزی کرنے، فریج کو صاف کر کے رکھنے، جمع کرنے، اس نیت سے نہیں. مل جائے ماشاءاللہ، یہ سیکنڈ آپشن رکھیے، لیکن پہلا آپشن یہ ہے کہ یہ عبادت ہے، اسی لیے اس کو قربانی کہا گیا. قربانی عربی لفظ ہے. جیسے رب کی طرف نسبت والے کو ربانی کہتے ہیں، ایسے ہی قرب مولا کی طرف نسبت کرنے والے کو قربانی کہتے ہیں. قربانی مطلب اللہ کا قرب، ایسا جانور جو ذبح تو اللہ کے لیے ہو رہا ہے لیکن مجھے قرب مولا عطا کر رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ قربانی کا جانور، آپ سوچیں کل جب میدان محشر یعنی پل صراط سے آپ کا گزر ہوگا تو یہی آپ کے لیے سواری بنے گا.
जसरुस सिरात, पुल सिरात पर ये आपके लिए क्या होगा, सवारी होगा। मैं बस इतना कहने चाह रहा हूं कि कुर्बानी में गोश्त पोस्ट का नजरिया ना हो, बल्कि तकवा का नजरिया हो, इबादत का नजरिया हो, कबूलियत का नजरिया हो, कुर्ब मौला का नजरिया। इस नीयत से अगर करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह। और मेन, सबसे मेन बात, कमांडेड हो, भरोसा। अच्छा, यहां पर हमारी जो लेटेस्ट बहनें और माएँ हैं ना, अरे घर में करे तो खूना लग जाते, दीवार में 10,000 रुपए खर्च हुआ है पेंटिंग में, ऐसा लोग देखे तो क्या कहते, ऐसा बात। वाकई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के हर नब्ज को पहचाना है, हर सेंस को पहचाना है। वाकई आलिम माकाना व मा यकून है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सबको आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की अता से जानते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले जो एक हदीस पाक का जुमला फरमाया, वो खून ही के हवाले से फरमाया। फरमाते हैं कि जानवर जो ज़बह करते हो, कुर्बानी का जानवर, उसका खून गिरने से पहले अल्लाह की बारगाह में, जमीन पर गिरने से पहले वो कबूल हो जाता। अब मैं कहने ये जा रहा हूं कि जमीन पर गिरने से पहले, खून का लफ्ज कहा है, जानवर भी बोल सकते थे, जानवर रखने से पहले ये ज़हन, खून ही की वजह से जो है ना, आप लोग ये सोचते हैं ना, अरे साफ करना पड़ता, कहां जी हाथ पावा बिल्कुल ये हो जाते वो हो जाते, अरे देख छोड़ो उनको, और बस 4-5 किलो गोश्त बोलो और फिर बांट देना। ये कमांडेड कुर्बानी नहीं हुई आपकी, ये भरोसा के लायक कुर्बानी नहीं हुई। ये बात याद रखिए। हम लोग भी इज्तिमाई कुर्बानी का कॉन्सेप्ट रखते हैं, लेकिन जितने भी हलाल पार्ट एक जानवर में है, बहुत अहम बात कह रहा हूं, जितनी भी हलाल पार्ट एक जानवर में है और उसमें 7 हिस्से हैं, 7 हिस्से में हर हलाल पार्ट को इक्वली तौर पर नाप कर, तौल कर, बराबर बराबर करना ये वाजिब है। 7 हिस्से जो है हर एक का अलहदा अलहदा, अब एक ही घर का है तो छोड़िए, उसमें नहीं, लेकिन जो इज्तिमाई या मुश्तरका कुर्बानी या अपने मोहल्ले में या अपने भाइयों में साथ खानदान में लेकर के, तो 7 हिस्से में कलेजी, फेफड़ा, जितनी भी हलाल चीजें हैं, हर एक पार्ट का 7 हिस्सा करना जरूरी है। अब यहां पर बड़े अदब करते हैं आप लोग, नहीं हमारे को खाली हड्डियां गुड्डियां नहीं देना, बस 5 किलो गोश्त दे देना बस। अब जो है गोया आप खुद उनको शरीयत के खिलाफ तिजारत का उन्वान दे रही, इसीलिए वो एक जानवर में 7 हिस्से नहीं 10 हिस्से लगा देते हैं। अब ये जो गुनाह वो कर रहे हैं, इसकी जिम्मेदार आप हैं, क्लियर कह रहा हूं मैं। जो हिस्सा ले रहे हैं वो आप हैं। हिस्सा लेने से पहले ये बात याद रखें कि जितने भी हलाल पार्ट हैं, 7 हिस्से डंडी एकदम बिल्कुल इक्वली तौर पर माप करके 7 हिस्से नाप करके रख देना है। अब अगर आप गए लेने के वास्ते तो वो ले लेना है। अब अगर उनमें से कुछ छोड़ना है तो आप छोड़ दीजिए, कोई हर्ज नहीं है। कहिए कि भाई मुझे इतना ही चाहिए, ये हमारी तरफ से बांट दीजिए इतना। पहले आपको हैंड ओवर लेना है, आपको अपने इसमें करना है। लेकिन जो कुर्बानी कर रहे हैं उन पर तो वाजिब है कि वो 7 हिस्से बिल्कुल इक्वली तौर पर पूरा, लेकिन ऐसा मैंने नहीं देखा है। आम दिनों में तो पाया खरीद खरीद के खाते आप, और इन दिनों में पाया फेंक देते हैं। मुझे बहुत अफसोस होता है कि यह कुर्बानी के नाम पर इस कायम की शक्ल ले लिया है और बिल्कुल मतलब बेराहरवी हो रही है, शरीयत का मतलब मजाक बन गया है ये। इसीलिए कुर्बानी का जो मकसद था खलीलुल्लाह का, वो मकसद था कि अल्लाह की बारगाह में महबूबियत। इसीलिए अल्लाह पाक ने कद सद्दक़्ता रुया, ए खलील तुमने ख्वाब सच कर दिखाया है, रियलिटी का क्या उन्वान होगा। मैं बस इतना कहने जा रहा हूं कि आप हम सब कमांडेड कुर्बानी करें। हम तो इस साल तो एक मुकम्मल तौर पर एडवाइज ही करेंगे कि जहां आपको मुखलिस उलमा की निगरानी मिल रही है वहां आप बेशक हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन जहां ऐसा नहीं, ये कसाया वगैरह जो कर रहे हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक जुमला बोल रहा हूं कि ये सब तिजारती तसव्वुर रखते हैं, ये सब तकवा का तसव्वुर नहीं रखते। आज जब आम दिनों में 450 रुपये गोश्त है, सही है, 450 रुपये किलो गोश्त है। अब अगर एक जानवर को 2 साल की उम्र वाले जानवर को खरीदेंगे तो 1 किलो 450, ध्यान रहे 450, हम 400 रुपये रखते हैं, तो 7 चौके 28,
7 हिस्से में अब मतलब 28 किलो, अब आप 450 1 किलो का मिल रहा है, तो अगर 10 किलो गोश्त भी ले तो आप बताइए 400 मतलब 5000 करीब 10 किलो गोश्त भी। और बताइए, मैंने कई जगह पे लिखा देखा है कि 3000 में, अब 3000 में और कहीं तो 1600 1500, आप समझ रहे हैं इस बात को। 1600 में आज अगर खरीदे गोश्त जा करके तो 3 से 4 किलो भी नहीं होगा। अब 3 से 4 किलो भी नहीं होगा तो 7 हिस्से में 7 चौके मतलब 20 किलो का कोई जानवर होता है बड़ा, 20 किलो का तो छोटा जानवर होता है। इन सब समझिए इन बातों को। 2 साल के ऊपर होना चाहिए, कम से कम 2 साल से नीचे नहीं होना चाहिए बड़ा जानवर। लेकिन नहीं, बस आप तो गोश्त बोल दिए, आप हिस्सा भी लेते वक्त यही बोलते कितना गोश्त मिलता जी है। अब वो भी बोल दिया कि आपको 8 किलो मिलता। मैं 1 साल आजमाने के लिए ऐसे ही 2-3 साल पहले ऐसे ही एक जगह लिया, तो लेने के बाद हालांकि वाजिब कुर्बानी नहीं, मैंने गौसे पाक के नाम पे इसके नाम पे लिया, तो आजमाने के लिए मुझे समझना था, उम्मत को समझाना था। तो देखा जब खोल करके तो सिर्फ गोश्त है उसमें, न कलेजी है, न फेफड़ा है, न दिल है, कुछ भी नहीं है। मैंने कहा ये स्कैम है, ये फ्रॉड है, ये धोखा है। क्यों नहीं दिया उसने? वो फ्रिज में रख करके दूसरे दिन फिर वो आप ही को बेचेंगे, जाइएगा आप तो ये हो रहा है। कसाईयों के यहां हरगिज हिस्से ना लें, क्लियर कह रहा हूं। हां, अगर कसाई मुत्तकी है, परहेजगार है, मुखलिस है तो फिर ठीक है, लेकिन ये तो यकीन है कि वो कसाई है तो तिजारत के लिए ही कसाई। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना, मां 365 दिन तक खाने के वास्ते हैं, लेकिन ये इबादत के वास्ते है कुर्बानी। ये खाने के, इसीलिए तो बांटने का हुक्म दिया गया है, 3 हिस्से लगाने का हुक्म दिया गया है। क्या आम दिनों में आप 1 किलो गोश्त खरीदते तो क्या 3 हिस्सा लगाते? नहीं लगाते। मालूम हुआ कि वो खाने का गोश्त आम दिनों के लिए, ये गोश्त जो है अल्लाह की इबादत है, ये अल्लाह का कुर्ब है, अल्लाह का तकर्रुब हासिल करने के लिए है, इसीलिए इसको कुर्बानी कहा गया है। आम गोश्त को कुर्बानी का गोश्त नहीं कहा गया। इसलिए इस बात को ध्यान में रखें कि जहां कहीं भी हिस्से का मामला हो, कमांडेड हो, 7 हिस्से इक्वल हो, हर हलाल पार्ट का एक एक हिस्सा। बड़ी जिम्मेदारी है भाई, बड़ी जिम्मेदारी है। आसान चीज समझ रहे हैं लोग, आसान समझते हैं मुसलमान होना। लोग कर तो लिए हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते, जब हम लोग नमाज पढ़ाते हैं ना, तो एक मसला आपको सुनिए। जब नमाज पढ़ाते हैं तो 500-1000 पीछे पब्लिक रहती, पब्लिक की नमाज में गड़बड़ी हुई तो हमारे को कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन हमारी नमाज में गड़बड़ी हुई तो सारी पब्लिक की नमाज गई। ये है हमारे इमाम और जिम्मेदार होने की जिम्मेदारी। अगर हमने कुछ गड़बड़ी कर दिया और नमाज नहीं हुई तो वो 500 लोगों का अजाब भी हमारे को मिलेगा। आसान समझते हैं लोग इज्तिमाई कुर्बानी, मुश्तरका कुर्बानी, लेकिन नहीं, आप खुद दे दिए हैं मौका, आप खुद मौका दे दिए हैं ऐसा। आप इसीलिए तो शरीयत में पॉसिबिलिटी का लिहाज है। आपके लिए जो पॉसिबिलिटी आपके पास है वो कीजिए। आप छोटा जानवर बुलाइए, घर में कीजिए अल्हम्दुलिल्लाह, जानवर से प्यार कीजिए, सब जने देख करके कीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये है कुर्बानी, और बांटिए, ये है कुर्बानी। कुर्बानी देने का नाम है मां, रखने का नाम नहीं है। इसीलिए ना बोलते हैं आप अपनी औलाद को, कितनी कुर्बानी तुम्हारे बाबा मामा दिए सो, और आज जो है बाबा मामा को ओल्ड एज होम में रखने जा रहे हैं। ये कुर्बानी देने को कहते हैं, लेने को नहीं कहते। हम नहीं बोल रहे कि आप जो है उसमें जमा नहीं कीजिए, आप बिल्कुल सब बांट दीजिए। इसीलिए तो आपको इख्तियार दिया गया है, आप पूरा अपना गोश्त अपने पास रख सकते हैं, पूरा बांट सकते हैं, 3 हिस्से भी लगा सकते हैं, दोस्तों के लिए, गरीबों के लिए, अपने घर के लिए। ये आपको इख्तियार दिया गया, चॉइस है, ये फर्जो वाजिब नहीं है। बस इतना कहने जा रहा हूं कि कुर्बानी के अय्याम में गोश्त का नजरिया ना रखिए, अल्लाह के कुर्ब का नजरिया रखिए, अल्लाह की इबादत का नजरिया रखिए, अल्लाह के बारगाह में मकबूलियत का नजरिया रखिए, और वो जानवर आपके लिए पुलसिरात का सवारी बने, इसका नजरिया रखिए। कौन सा पुलसिरात? जो बाल से ज्यादा बारीक है और तलवार से ज्यादा तेज है, उस पर आपको पांव रखना है। जरा आप अपने एक सर का बाल तोड़ करके पांव रख के बताइए तो, ये आपके बाल से भी ज्यादा बारीक कहा गया।
اور तलवार से भी ज्यादा तेज कहा गया, उसके ऊपर आपको रखना है पांव, और उसके ऊपर इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, हर एक को चलना है, हर एक को चलना। मेरे आका का करम देखिए कि तसव्वुर और तकवा की नीयत के साथ कुर्बानी करने वाले को कहा परेशान ना हो, तुमने यहां दुनिया में कुर्बानी की है ना, वही जानवर तुम्हारे लिए वहां सवारी बनेगा और कहेगा मैं अल्लाह की बारगाह में गोश्त पोस्ट का नजरिया ना रखने वालों, खुदा की बारगाह में मुझे मकबूलियत का नजरिया देने वालों, आज मैं तुम्हारी सवारी हूं, तुम ये पतले बाल से या तेज तलवार से न डरो, मैं सवारी हूं। तो ये तसव्वुर में आपको कुर्बानी करनी है। इसलिए जितने भी फ्रॉड हो रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए से, इन तमाम चीजों से बचिए, कमांडेड नजरिया हो। इसीलिए कहा गया इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियतों पर है। आप अपनी नियतें पहले अच्छी रखें, और नियतें ये अंदर की सोच को कहते हैं। आपके अंदर किसी का दिल खुश करने के लिए हजरत है दे दिए, हो गया, खुश हो जाते, फिर तो आप हजरत को खुश कर रहे हैं ना। इसलिए हजरत, यहां पर हजरत अल्लाह रब्बुल इज्जत तसव्वुर में हो। हां, मुखलिसीन निगरानी उलमा की अगर है अवेलेबल तो अल्हम्दुलिल्लाह आप कीजिए। मैं इस पर ज्यादा जोर दे रहा हूं कि अभी ये 4-5 दिनों में बड़े आम हो रहे हैं। मैंने तो 1600 का जब देखा, सही कह रहा हूं, मेरे हाथ पांव कांपने लगे। 450 रुपया किलो गोश्त मिल रहा, 1600 रुपये में कई किलो देता बा। 3 किलो अगर गोश्त दिए तो 7 हिस्से में 7 या 21 किलो का जानवर। मां, ये कैसा बड़ा जानवर है, ये कौन सा जानवर है? ये है स्कैम, ये है तिजारत, ये इबादत नहीं है। ऐसी कुर्बानी नहीं हो सकती। कुर्बानी में तो ये कहा गया फरबा हो, मोटा हो, अच्छा हो, खूबसूरत हो, ऐब से पाक हो। अरे जब कान कट्टा नहीं कर सकते, आंख निकला नहीं कर सकते, पांव कट्टा नहीं कर सकते, हालांकि ये चीजें वो हैं जो अफेक्टिव नहीं होती गोश्त पे, बताइए, फिर भी बताइए कुर्बानी में कमियां और नुक्स का उन्वान दिया गया कि नहीं होती। बताइए 2 साल से कम ये 20 किलो का जानवर लाके कुर्बानी करे तो कहां से होता जी? ये तो मुकम्मल ही आयब है, मुकम्मल आयब है। कुर्बानी के लिए जो शराइत है, आप बड़ा जरा ये सोचो मां, क्या बगैर वजू के आप नमाज पढ़ेंगे तो हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि मिफ्ताह सलाह अत्तहूर, नमाज की कुंजी वजू है। मतलब यह हुआ नमाज का घर खुलेगा ही नहीं जब तक वजू ना हो। तो आइए, कंपलसरी है वजू। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए इधर से उधर से घुस करके नमाज पढ़ने की, बगैर वजू के होती ही नहीं नमाज। तो ऐसे ही कुर्बानी की कुंजी क्या है? तकवा, लिल्लाहियत, 2 साल से ऊपर का जानवर, ये सब कंपलसरी चीजें हैं। ये नहीं अपनाएंगे तो कहां से कुर्बानी में दाखिल होते आप? इसलिए एक हदीस पाक सुनिए और कुर्बानी की अहमियत पर जरा तवज्जो, और फिर आपके पास अगर कोई सवाल है तो कीजिएगा। एक सहाबी है, बुखारी शरीफ की हदीस है, नमाज ईद उल अजहा से पहले उन्होंने कुर्बानी कर लिया। जरा गौर कीजिएगा, नबी के जुमले से मैं मुस्तफाद कर रहा हूं। आकर के अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मैं कुर्बानी करके आ रहा हूं और कुर्बानी का गोश्त खा के भी आ रहा हूं। सोचे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबाशी देंगे, खुश होंगे। फरमाया, कैसा कर लिया तुमने? मन सल्ला सलातना व नसका नुसुकना फकद असाब, कि जिसने नमाज पहले पढ़ी फिर कुर्बानी की। ये शहर वालों के लिए, जहां ईदाइन जुमा वगैरह होते हैं, शहर वाले के लिए हुक्म है कि वो नमाज जब तक ना हो, नमाज से मुराद पूरे शहर में कहीं भी ऐसा होता है ना कि मैंने नमाज नहीं पढ़ा है लेकिन मोहल्ले में नमाज हो गई है, मैं दूसरी जगह जा रहा हूं नमाज पढ़ने के वास्ते, मगर मेरी कुर्बानी होने जा रही है, तो क्या हो सकती? नहीं हो सकती? हाँ हो सकती। शहर में कहीं भी नमाज हो गई वक्त नमाज में, तो आप नए भी नमाज पढ़े तो कुर्बानी हो सकती। अफजल यह है कि आप अपनी नमाज पढ़ के कुर्बानी कीजिए, लेकिन मुश्तरका वगैरह में आपका तो लिहाज नहीं करेंगे ना वो। तो कुर्बानी में नमाज का लिहाज है शहर में, लेकिन चूंकि उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी थी इसलिए वो कुर्बानी करके चले आए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? शातु का शातो लहमिन, ये अरबी का लफ्ज है
کہ سنو یہ جو تم نے جانور قربانی کی ہے نا یہ گوشت کا جانور ہے, یہ قربانی کا جانور نہیں ہوا. اس سے کیا سمجھے آپ؟ یعنی قربانی میں گوشت کا لحاظ نہیں ہے, ورنہ نبی نہیں فرماتے جو قربانی ہے وہ گوشت کا لحاظ نہیں فرمایا, جو قربانی نہیں ہے فرمایا یہ گوشت کا جانور ہے. وہاں پر بھی حدیث پاک کا لفظ یہ کہہ رہا ہے کہ قربانی کے لیے شرائط کو, کمپلسری چیزوں کو اگر فالو نہ کیا گیا تو وہ کھانے پینے کی تو چیز ہوئی, قربانی نہیں ہوئی. اس حدیث سے یہی مطلب نکلتا ہے, ورنہ صحابی رسول کو کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے آئندہ اس کا خیال رکھنا. نہیں 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 نہیں, چنانچہ صحابی نے ایک جملہ بھی کہا, یا رسول اللہ ایک ہے میرے پاس, وہ دو مطلب ہے تو عمر میں چھوٹا, سال نہیں ہے, لیکن وہ 2 بکری سے بھی موٹا ہے, 2 بکری سے بھی زیادہ موٹا تگڑا اچھا ہے, کیا میں کر سکتا ہوں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا داد اور عطا کردہ اختیار کی بنیاد پر فرمایا جاؤ, تمہارے لیے تو جائز ہے لیکن تمہارے بعد کسی کے لیے جائز نہیں ہے, بلکہ ہر ایک امتی کے لیے سال گزرنا ضروری ہے جانور پر. دیکھا آپ نے, وہ ان کی تالیف قلبی کے لیے پرسنل حکم دے دیا. اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کہ قربانی کے جانور کی عمر کو دیکھنا کمپلسری ہے. جہاں کہیں بھی یہ 1600 2000 3000 کے اندر کا جہاں بھی عنوان ہو رہا, سمجھ جائیے کہ یہ جانور یا تو مکمل کمزور ہے یا پھر 2 سال سے کم ہے, کیونکہ 400-500 روپے کلو گوشت مل رہا اور ہر جگہ مل رہا. ایسا نہیں کہ ہر جگہ مل رہا ہے. اتنی قیمت بڑھنے کے بعد اس کو کہاں اوپر سے آ گیا جانور, کہاں سے وہ خرید کر کے لائے ہیں؟ اس لیے اس طرح سے تجارتی نظریہ رکھنے والوں کے پاس حصے لینے یا ایسے خود بھی جانور خریدنے سے بچیں. بڑے کے لیے 2 سال سے اوپر ہونا چاہیے, چھوٹے کے لیے 1 سال ہونا چاہیے, اور اس میں بھی فربا ہو, خوبصورت ہو, اچھا ہو ماشاءاللہ. اور فربا خوبصورت اچھا سے مراد اللہ قبول کرے اس اچھائی کو. ایسا نہ ہو کہ ہاں 70 کلو گوشت ہے تو ماشاءاللہ 7 حصے میں تو 10 کلو مل ہی جاتا, وہ ایسا نہ ہو. گوشت کی نیت نہ ہو, مل جائے سبحان اللہ, قبول ہو جائے الحمدللہ. تو یہ آپ نظریہ رکھیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی قربانی بھی صحیح ہوگی, قبول ہوگی الحمدللہ. یاد رکھیں جو گھر میں بڑے ہیں ان کو نماز عید الاضحیٰ کے فجر تو چھوڑنے ہی نہ دیں, یوں تو عام دنوں میں بھی نہ چھوڑنے دیں, لیکن مرد حضرات کو ضرور کہیں جاؤ, خاص طور سے جنہوں نے نماز فجر نہ پڑھی. نماز فجر فرض ہے اور نماز عید الاضحیٰ واجب ہے. اتنے اچھے کپڑے واجب کے لیے اور ایسے ایزی کپڑے فرض کے لیے, اس لیے یہ اہمیت دلائیے. آپ بھی پڑھیں گھر میں شکرانہ کے طور پر, وہاں نہ جائیں مطلب عیدین اور جمعہ مسجد میں, لیکن گھر میں آپ پڑھیں. جو جس طرح سے بچوں کی طرف سے بھی پاسبل ہے تو دیجئے, مرحومین کی طرف سے بھی پاسبل ہے دیجئے, جن کی طرف سے بھی ہے پاسبل دیجئے, لیکن سب سے پہلے آپ پر واجب ہے تو آپ اپنی طرف سے قربانی دیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی کو اور آپ قربانی سے ریلیٹڈ ہر چیز کو قبول فرمائے اور ہر طرح سے جو بھی اسباب درکار ہیں وہ نصیب کرے. کوئی بھی پریشانی, کوئی بھی مشکل, کوئی بھی مصیبت ہرگز نہ آئے. حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ طفیل میں, خلیل ابراہیم علیہ السلام کے صدقۃ طفیل میں آپ کی اس خاص عبادت کو یعنی قربانی کو قبول فرمائے. والسلام علی من اتبع الہدی.